आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है। हम आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और विश्व की एक नंबर 1 की आर्थिक महाशक्ति बनना, ये प्रधानमंत्री जी का सपना है। और मेरा विश्वास है कि हम ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन पर हमने काम शुरू किया है। अब हाइड्रोजन इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उपयोग होगा और हाइड्रोजन और अमोनिया हम एक्सपोर्ट करेंगे। और जैसे आज फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट हो रही है हमारे देश में, वैसे हमारे देश से अमोनिया और हाइड्रोजन एक्सपोर्ट होगा। हमारे हवाई जहाज, हमारी रेलवे, हमारी ट्रक, हमारी इंडस्ट्री उसके ऊपर चलेगी। वो दिन अब दूर नहीं है। Infrastructure is one of the most important building blocks for any developing nation. It not just interconnect geographies, but also act as a catalyst for economic growth and social progress. Welcome to the Economic Times. Today we have an eminent personality who is working tirelessly to develop nation's network to reduce cost, create efficiencies and build world-class roads. Known for his dynamic vision and strong work ethic, Shri Nitin Gadkari, Union Minister of Road Transport and Highways, is the driving force behind the transformative initiatives. Shri Nitin Gadkari's forward-looking vision and emphasis on innovation has also created a lot of entrepreneurship and job opportunities. Welcome to the show, sir. First of all, we would like to understand your vision towards 5 trillion economy and the role of infrastructure in that. Actually, frankly speaking, our automobile industry is the growth engine for our development. Presently, the size of the industry is 7.5 lakh crores, out of which 3 lakh crore export. This is the industry which is giving maximum GST to the state and central government. This is the most important industry which is up till now created 4 crore 50 jobs. This is the industry which contributes highest for our export. And now our dream is to make this industry of 15 lakh crore. Presently, the two-wheeler manufacturer Bajaj, TVS and Hero, they have their 50% of production is export. And now the all reputed brand in the world, they are present in the country. And they are not only working for domestic market, but they have maximum export from India. India has got the tremendous, intelligent, young, talented manpower available in India. And now because of the scrapping policy, we can reduce the cost of component by 30% because the recycling of aluminum, copper, rubber, plastic and any main material is going to reduce the cost. So it's a win-win situation for all, and that is the reason that I am sure that we will be presently our number, previously it was number 4 in the automobile manufacturing in the world. The first number was with China, second was with USA, third was with Japan and fourth was with India. Now we have just 1 month before surpassed Japan and our number is third. And I am confident that within 5 years we will be number 1 because on alternative fuel also, electric, ethanol, methanol, biodiesel, bio-LNG, bio-CNG, electric and hydrogen, we are doing excellent job, a lot of research, and that is the reason that the future of automobile industry is related with the Indian automobile industry and we will be number 1 in the world. And you also said that you're going to reduce the fuel, fossil fuel consumption. Is there a timeline that you have set for it, that India is going to reduce the I don't want to explain in the language of timeline, but I will tell you. Now electric. Why people are preferring electric? It is the most important reason it is cost effective, pollution free, import substitute and indigenous. Now the problem is 1 liter of petrol equal to 10 rupees of electricity. So naturally it is going to reduce the cost and the pollution same time. Presently we import fossil fuel and electric is indigenous. So it is win-win situation. That is the reason that now people are preferring electric vehicle. Now the problem is that the cost of the electric vehicle as compared with diesel and petrol is high.
Previously, it was $150 per kilowatt. The cost was there. Now it reduced up to $115, and now in due course of time, it will come with $100. So it will be as long as same with the petrol and diesel, and so people will prefer to purchase electric. Now we are launching flex engine. So in the August, Toyota has promised me that they will launch their flex engine Innova car. That is, the meaning is you can use 100% ethanol in place of petrol, and after that 40% electricity, the car will run on the 40% electricity generated by the engine. So ultimately the final cost will come 15 rupees per liter petrol cost will come as in the flex engine, because we are using the flex fuel, the ethanol as a fuel. So that is the reason it is cost effective, pollution free and indigenous, and people will prefer it, and 100% I am confident it is going to change a big game. It will be a game changer in the history of automobile industry. So that's a great news that we will have reducing the petrol prices and the overall operating cost. I am of a not vehicle. talking about reducing, No, but the comparison yeah. of if suppose 1 liter of petrol, how much average you will get it, that by this technology it comes to the cost of the petrol will be 12 to 15 rupees. So it is saving. नहीं सर, अभी इंडस्ट्री जो है काफ़ी बात कर रही है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी काम कर रहे हैं, फ्लेक्स इंजन पे भी काम कर रहे हैं, इथेनॉल पे भी काम कर रहे हैं. आपके हिसाब से क्या टेक्नोलॉजी रोड मैप होना चाहिए इंडिया के लिए, और ऑल्सो BS7 के लिए कितनी तैयारी? देखिए, करनी पहले चाहिए बात अभी? तो ऐसे कि ये समुद्र है, 16 लाख करोड़ का इम्पोर्ट है, राइट. रीजन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल वाइज. अभी हम लोग परली से CNG LNG बना रहे हैं. मैं मानता हूँ पंजाब और हरियाणा के सब ट्रैक्टर, बसेस और ट्रक, अगर ये परली से CNG पे कन्वर्ट हो जाएगा तो वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्योंकि वहाँ परली अवेलेबल है. कुछ जगह पर उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में इथेनॉल अवेलेबल है, तमिलनाडु में, वहाँ इथेनॉल बेस्ड इकोनॉमी डेवलप होंगी. कुछ जगह ग्रीन हाइड्रोजन डेवलप होगा. अभी मिथेनॉल बनता है, आसाम पेट्रोलियम 100 टन मिथेनॉल बनाता है. हमारे यहाँ मुंबई में RCF और दीपक फर्टिलाइज़र बनाते हैं. तो मुंबई का ट्रांसपोर्ट हम लोग मिथेनॉल पे ले जा सकते हैं. अभी मैंने अशोक लेलैंड का ट्रक को मिथेनॉल पे लॉन्च किया, और बेंगलोर के बस ट्रांसपोर्ट ने 20% मिथेनॉल डीजल में डाला. तो जहाँ जहाँ जिसकी अवेलेबिलिटी है उसका उपयोग करें. फिर भी ये समुंदर है, उससे इतना सब करने के बाद भी पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट करना बहुत कठिन है, पर असंभव नहीं है. और इसलिए सब लेवल पर प्रयास करके फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम करना, यही हमारा प्रयास है, और इसी से वो कम होते जाएगा. और निश्चित रूप से 2070 में कार्बन न्यूट्रल की ओर प्रधानमंत्री जी ने हमको जो मिशन दिया है उसकी तरफ हम निश्चित जाएंगे. हमारी पावर सेक्टर में अब 38% पावर सोलर है, वो 60% हो जाएगी. हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर, जियोथर्मल पावर, ये सब पे संशोधन चल रहा है. और हम पोल्यूशन को बचाकर हम ऊर्जा को बनाएंगे. और आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है. हम आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और विश्व की एक नंबर 1 की आर्थिक महाशक्ति बनना, ये प्रधानमंत्री जी का सपना है. और मेरा विश्वास है कि हम ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे. ग्रीन हाइड्रोजन पर हमने काम शुरू किया है. अब हाइड्रोजन इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उपयोग होगा, और हाइड्रोजन और अमोनिया हम एक्सपोर्ट करेंगे. और जैसे आज फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट हो रही है हमारे देश में, वैसे हमारे देश से अमोनिया और हाइड्रोजन एक्सपोर्ट होगा. हमारे हवाई जहाज़, हमारी रेलवे, हमारी ट्रक, हमारी इंडस्ट्री उसके ऊपर चलेगी. वो दिन अब दूर नहीं है. तो सर कोई इंसेंटिव वगैरह होगा कंपनीज को ये सब यूज़ करने के लिए, जिस तरह के क्योंकि अभी इन द सेंस कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें तो अभी फ़िलहाल तो फॉसिल फ्यूल ही होगा कॉस्ट इफेक्टिव. अगर वो उस पर स्विच करना चाहें, कोई इंसेंटिव उनको मिलेगा जिसके उनको एनकरेज करें? थोड़ा सा सुधारूंगा. ये कॉस्ट इफेक्टिव अभी है. अच्छा. पेट्रोल डीजल की तुलना में इफेक्टिव है. दूसरी बात, अभी जैसे इलेक्ट्रिक कार पर हमने केवल 5% GST रखा है, और पेट्रोल के कार पर 48% है. तो वैसे भी सरकार ने कार्बन डाइऑक्साइड कम करने वाले, पोल्यूशन कम करने वाले लोगों के लिए ऑलरेडी हमने हमारे इंसेंटिव प्रोग्राम अट्रैक्टिव रखा हुआ है. आगे भी इसमें फाइनेंस मंत्री जी का अधिकार है, वो निश्चित रूप से इस प्रकार की नीतियों में आगे निर्णय करेगी. आपकी तरफ से कोई ऐसा प्रपोजल या मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसा कोई प्रपोजल जाएगा? मैं अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि जैसे आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को ये किया है, वैसे आप
फ्लेक्स इंजन जहाँ 100% इथेनॉल जो इंडिजिनस है, जिससे कॉस्ट भी कम हो जाएगी। जैसे मैंने कहा 12 रुपये लीटर पेट्रोल की कॉस्ट आएगी अगर वो कंपैरिजन किया तो। अच्छा। इंपोर्ट भी कम होगा, प्रदूषण भी कम होगा। तो देश वर्ल्ड में 22 देशों में ये इमिशन कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का, पोल्यूशन कितना है, उसके आधार पर टैक्सेशन है। जो ज़्यादा का पोल्यूशन करेंगे उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स, और जो कम करेंगे उनको कम टैक्स। इसी आधार पर फ्लेक्स इंजन, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन और जो अल्टरनेटिव फ्यूल है जो प्रदूषण कम करने वाली है उसको इंसेंटिवाई करना, और जो पोल्यूशन करने वाले हैं उनको ज़्यादा टैक्स लगाना, ऐसी नीति के बारे में वित्त मंत्री विचार करें, ऐसा मैं उनसे अनुरोध करने वाला हूँ। राइट सर, आपने स्क्रैपिंग पॉलिसी की बात करी और 30% कंपोनेंट्स हम इंटरनली रिड्यूस कर लेंगे कॉस्ट को। व्हीकल सेफ्टी एक अलग मुद्दा है जिसकी वजह से 6 एयरबैग्स आपने बोला था कि 6 पे मैंडेटरी होने चाहिए ग्लोबली, और ग्लोबली इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं जो कि हमारी गाड़ियों को टेस्ट भी करती रहती हैं। कोई स्टार रेटिंग्स वगैरह इंडिया के लिए आप प्रपोज कर रहे हैं? बिल्कुल किया है, और स्टार रेटिंग के कारण हमारी क्वालिटी सुधर जाएगी और लोगों को बहुत सुरक्षितता मिलेगी। और अभी ऑलरेडी महिंद्रा, टाटा इन्होंने 6 एयरबैग का कर लिया है, और स्टार रेटिंग के कारण उनके लिए करना अनिवार्य ही हो जाएगा। तो अब स्टार रेटिंग आ रहा है जिसके कारण परिस्थिति अब सुधरेगी। और रोड सेफ्टी के हिसाब से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमको जो भी सुधार करना है वो करने की, प्रदूषण कम करने के लिए और लोगों की जान बचाने के लिए हम लगातार कोशिश करते रहते हैं कि हम निश्चित रूप से लोगों की जान बचाएं और देश के प्रदूषण को कम करें। हमारे प्रदूषण में 40% कंट्रीब्यूशन फॉसिल फ्यूल का है। अगर हम इसको कम कर पाएंगे तो देश के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। सर, आपने ये तो कहा कि एयरबैग्स लगा के, ज़्यादा एयरबैग लगा के सेफ्टी के लिए, बट पुरानी रिपोर्ट्स अगर हम देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रीज़न है रोड एक्सीडेंट का वो है फॉल्टी रोड डिज़ाइन। आप उस बारे में क्या एग्जैक्टली रोड मिनिस्ट्री कर रही है? ये तो बात सही है कि रोड इंजीनियरिंग में भी कमियां हैं, और हमने करीब अभी तक 40,000 करोड़ के ब्लैक स्पॉट इम्प्रूव किए हैं। ये यूपीए सरकार के समय एक नीति थी कि रोड को वायबल करने के लिए फ्लाईओवर निकाल देना, ये निकाल देना, वो निकाल देना, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने की नीति थी। उससे रोड गलत बने हुए हैं, उसमें रोड इंजीनियरिंग में डिफ़िकल्टी है। तो भविष्य में हम जो रोड बनेंगे उसमें सब प्रकार की चिंता करें कि इसमें कोई भी कमी ना रहे, और जो एग्जिस्टिंग इसमें जो गलतियाँ है ब्लैक स्पॉट के रूप में आ रही है उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। और कई जगह 6 लेन का रोड है, 4 लेन के ब्रिज है। तो इन सब बातों को कम करके सुधारने के पीछे हम लगे हैं। 1-2-3 साल में ये सब ड्रॉबैक निकल जाएंगे। तो इसमें कोई अलग वो है NHAI के लिए कोई अलग टारगेट है कि रोड डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए, या पार्ट ऑफ? मैं बहुत इस बात के ऊपर नाराज़ होता हूँ कि मरने वालों के लिए फेज़ 1 फेज़ 2 ऐसा सोचना है क्या? हम नहीं करेंगे 2 काम। पहले हम रोड सेफ्टी में काम करेंगे और पहले लोगों की जान बचाएंगे, फिर लगे तो नए ब्रिज और नए रोड बनवे। प्रायोरिटी बेसिस पर पहले रोड सेफ्टी का विचारो, यही आग्रह और यही आदेश हमने सबको दिया है। आपका BS7 पे आपने रिसेंटली बोला था कि BS7 की तैयारी कर लेनी चाहिए, और व्हाट इज़ द रोड मैप फॉर दैट? ऑटो इंडस्ट्री को किस तरह से? देखिए, अभी BS6 पर हम आए, राइट, और ये लाने के लिए भी बहुत कठिनाइयाँ आई थी, और आज BS6 पर हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सके। इसका कारण ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने भी हमको सहयोग किया। अब BS7 के बारे में वर्ल्ड के साथ हमको आगे जाना है, और इसके बारे में हम लोग इंडस्ट्री के साथ वो भी रिसर्च कर रहे हैं, और उनके साथ चर्चा करके प्रदूषण का महत्व उनको भी पता है, तो निश्चित रूप से हम इसके ऊपर कोई टाइमलाइन सेट की है कि किस साल तक इसको मैं हम approach एकदम करें? ऐसी कोई टाइम लिमिट सेट नहीं करना चाहता। अच्छा, मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बातचीत करके फिर वो सेट करें। हाँ सर, अगर हम NHAI पे आए, टारगेट, रोड कंस्ट्रक्शन टारगेट पिछले 2-3 साल से रोड कंस्ट्रक्शन टारगेट मीट नहीं हो पा रहा है। उसमें एक्चुअली रीज़न ज़्यादा डिलेड मॉनसून और इस वजह से ये सब हो रहा है। इस बार भी मौसम तो इसी तरह का ही है, तो कुछ ये सब फैक्टर इन करेंगे सो दैट कि कोई टारगेट रिवाइज करना डाउनवर्ड, या इस चीज़ों को फैक्टर इन करके अपना टारगेट सेट करें? देखिए, एक तो बात ऐसी है कि हमारे कोविड के कारण पिछले 2 साल में जब रोड चालू थे उसमें काफ़ी बड़ी दिक्कतें आई। दूसरी बात ऐसी है कि ये क्लाइमेट चेंज के कारण अब तो मार्च अप्रैल मई में पानी आ रहा है, और जून जुलाई अगस्त में धूप तप रही है। तो टोटली हमारा क्लाइमेट बदल चुका है, उसके कारण भी तकलीफें हो रही है। पर मैं एक बात अक्सर याद रखता हूँ कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़,
and there are some people who convert opportunities into the problem. तो हम जो जो प्रॉब्लम्स हैं, उन समस्या है, उनको हम आह्वानों के रूप में, अपॉर्चुनिटी के रूप में स्वीकार करें और हम रीजनिंग नहीं दें, हम काम करें और टारगेट को हासिल करें। यही बात मैं हमारे अधिकारियों को कहता हूँ। अच्छा, उसी पे ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मोनेटाइजेशन के ऊपर, कि जो रोड मोनेटाइजेशन का जो प्लान NHAI का था और उसमें इनविट जो आने थे उसमें एक ही अभी राउंड आया है, थर्ड और फोर्थ अभी सेकेंड और थर्ड अभी राउंड आने हैं, और बाकी जो रोड मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स का प्लान था उस पे अभी इनविट में बीच में कुछ टैक्सेशन के इशू आए थे, तो हम थोड़े रुक गए थे, वो क्लियर हो गया है। आज ही मेरी चेयरमैन साहब से बात है, उस मीटिंग में इसकी भी चर्चा करेंगे। और सर अभी रिसेंटली नीति आयोग ने भी इवैल्यूएशन की बात करी कि NHAI का इवैल्यूएशन होना चाहिए, उसके फाइनेंसेस का, उसकी जो इंक्रीजिंग डेट है, जो उसका डेट बहुत बलून कर गया, उसका एक इवैल्यूएशन होना चाहिए। तो क्या आप रेडी हैं NHAI के इवैल्यूएशन? पूरी रेडी है। NHAI गोल्ड माइन है। NHAI का टोल इनकम लगातार बढ़ रहा है और जो जो हमने लोन लिया है वो लोन 12 साल 15 साल में फिट कर वो रिटर्न हमको आगे मिलते ही रहने वाला है। तो वैसे ही मैंने उसका पूरी तरह एसेट मोनेटाइजेशन के आधार पर हमारी एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी, ये एक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। काफ़ी काम हुआ है, जल्दी मुझे मिलेगा, हम उसको प्रकाशित करेंगे। तो सर मिनिस्ट्री आपको रिपोर्ट देगी, मतलब इंटरनली आपके लिए? नहीं, NHAI भी अध्ययन कर रहा है, आ जाएगा रिपोर्ट। अच्छा, हमारा बजट 2,70,000 करोड़ का है और मोनेटाइजेशन भी करके हम हर साल एक अमाउंट मोनेटाइजेशन भी मिलाएंगे। और अब हम एक बात हमने की कि हम बड़े बड़े कंपनी और फंड्स के बजाय जो छोटे लोग हैं, सफाई कामगार है, कांस्टेबल है, कर्मचारी है, पत्रकार है, टीचर है, हम उनको कह रहे कि आप हमारे इनविट बॉन्ड में इन्वेस्ट करो। अभी हमने मुंबई में जब इनविट बॉन्ड लॉन्च किया तो 10 दिन का टाइम था, पर पहले दिन 7 घंटे में वो 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ और आखिर मुझे मुंबई आकर उसको क्लोज करना पड़ा। तो आने वाले समय में गरीब लोग हैं, इनको 8.05% ब्याज मंथली, यानी ईयरली है वो, पर ब्याज मंथली उनके अकाउंट में जमा होगा। तो ये बैंक में भी 5.5-6 के ऊपर नहीं है, तो गरीब लोगों का फ़ायदा होगा और उनके पैसे से रोड बनेंगे, यही मेरी इच्छा है। सर एफिशिएंसी की बात करें तो जैसे बहुत सारे हाईवेज हमने दिल्ली बॉम्बे भी किया, देहरादून दिल्ली देहरादून किया, उससे कितनी एफिशिएंसी क्रिएट हो रही है और कितना हम आगे फर्दर सर इसको कितना करोड़ों लीटर फ्यूल बच रहा है, समय बच रहा है। अभी दिल्ली से देहरादून 9 घंटा लगता था, अब दिसंबर के बाद 2 घंटे में होगा। हरिद्वार 7-8 घंटे लगते थे, हरिद्वार 1.5 घंटे में होगा। दिल्ली से मुंबई कार से जाने के लिए 40-42 घंटे लगते थे, हम 12 घंटे में होगा। दिल्ली से जयपुर 5-6 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होगा। दिल्ली से चंडीगढ़ 5-6 घंटे लगते थे, 2-2.5 घंटे में होगा। दिल्ली से अमृतसर 8-9 घंटे लगते थे, 4 घंटे में होगा। दिल्ली से कटरा 6 घंटे में होगा। दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में होगा। बेंगलोर से चेन्नई 6-7 घंटे लगते थे, 2 घंटे में होगा। बेंगलोर से मैसूर पहले 4 घंटे लगते थे, अब 1.25 घंटे में होगा। तो ये तो बदल हो ही रहा है और ऐसे और अनेक रोड बन रहे हैं। इससे क्या होगा, फ्यूल कॉस्ट कम होगी। फिर एक ट्रक जो 4 ट्रिप मार रहा है वो 8 ट्रिप मारेगा, तो नेचुरली कैपिटल कॉस्ट में उसका फ़ायदा होगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमारी वर्ल्ड में लॉजिस्टिक कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, 16%, और अभी अमेरिका में और यूरोप में 12% है और चाइना में 8 से 10% है। हमारा प्रयास है कि हम जल्दी ही 5 साल के अंदर लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट 9 पे लेके आएंगे। सर इसके साथ साथ जैसे हम ईवीज़ के ऊपर भी हम हमारा फोकस है, तो हाईवेज़ के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हम प्रमोट कर रहे हैं। आप इस तरह से कुछ बातचीत चल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वालों से या फिर किसी भी लार्ज कंपनी से, सो दैट एक लंबा स्केल पे डेप्लॉयमेंट हो सके, बिकॉज ऑल दीज हाईवेज आर न्यू नाउ। ऑलरेडी हमने 670 रोड से एमिनिटीज़ बना रहे हैं और सबके ऊपर हम लोग चार्जिंग स्टेशन कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, तो हम दिल्ली से जयपुर अब इलेक्ट्रिक हाईवे की भी बात सोच रहे हैं, ताकि बस और ट्रक केबल पे लग कर जाएगी। जियो फेंसिंग ऑफ हाईवेज की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो होगा? नहीं, हम जो फेंसिंग है उसको अच्छी क्वालिटी का बनाने का हमने कुछ एक कंपटीशन की थी, उसका डिज़ाइन हमारे पास आया है, हम जल्दी फाइनल करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर योर विजन ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ फ्लीट, आप कब तक देखते हैं कि हम 2030-35 कब तक कंप्लीटली? समय के मर्यादा में मैं जाता नहीं। मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके पास पेट्रोल गाड़ी होगी तो आपको 25,000 रुपये लगता है, राइट। अगर वही इलेक्ट्रिक गाड़ी में उससे अच्छे कंफर्ट्स लेकर आपको 2,000 रुपये महीने में होगा और 23,000 रुपये बचत होगी, तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं इलेक्ट्रिक गाड़ी को। आज इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए वेटिंग लिस्ट है,
आज जो लोग मुझे पूछते थे रास्ते में क्या होगा कैसा होगा, अब वो आते कि आउट ऑफ टर्न मुझे गाड़ी मिलाने के लिए आप चिट्ठी दो, राइट। तो ये चेंज हो गया। और सर इस बीच में हाइब्रिड्स का क्या स्टेट रहेगा, बिकॉज हाइब्रिड इज ऑल्सो ए वेरी फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल। हाइब्रिड को भी फायदा होगा, हाँ। हाइब्रिड को भी प्रोत्साहन। देखो कंज्यूमर को चॉइस करना है, मार्केट में ऑल टाइप ऑफ ऑप्शंस विद द कंज्यूमर, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, ये हमारा सूत्र है। और इसलिए कंज्यूमर भी हाइड्रोजन आएगा। वो पहले अगर इलेक्ट्रिक की गाड़ी होगी तो शायद कल हाइड्रोजन की लेगा, फ्लेक्स इंजन की लेगा। तो अब धीरे धीरे हम और भी चाह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम अच्छा बनाएं ताकि लोग अपने गाड़ी को बजाएं। हिंदुस्तान में ऑटोमोबाइल का नंबर और पॉपुलेशन का नंबर बढ़ाने का एक्सपर्टाइज है। अब इस प्रकार से बढ़ने भी एक समस्या है, तो हम चाहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाएं, उसको अच्छा कंफर्टेबल बनाएं, कॉस्ट इफेक्टिव बनाएं, ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। सो उसी से रिगार्डिंग आई थिंक फॉरेन कंट्रीज़ में आपका कुछ डेलीगेशन भी गया था ना कि इंडिया में वो वैसा ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वैसे ही Ropeway, फ्लीट हम रेप्लिकेट कर सकें। रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, स्काई बस, ये सब प्रोजेक्ट पर हम 260 प्रपोजल हमारे पास आए हैं 1,30,000 करोड़ के, और इस पर हम सोच रहे हैं। सर इसी बात से फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी का क्या विजन है आपका? सर ये वर्ल्ड में नंबर 1 पे जाएंगे, और हिंदुस्तान में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री, इंडिजिनियस, कंफर्टेबल, जैसे हमने कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में जाएंगे, वैसे आज जो डीजल और पेट्रोल की बसें से व्हीकल है उसकी तुलना में 30% रेट कम होंगे। एयर कंडीशन में लोग बैठेंगे, कंफर्ट्स होंगे लग्जरी में, और अच्छा प्रवास करेंगे, उनको अच्छा सस्टेनेबल कंफर्ट मिलेगा। राइट, थैंक यू सर। थैंक यू सो Thank you मच for your सर, time. थैंक यू।